आप सभी का एक बार स्वागत है आज का इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और आज का जो प्रोग्राम है हमारा जो सेशन है हमारे दीपक सर हैं वो ले रहे हैं। और इस सेशन को आप लोग एंजॉय कीजिए। मन में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप उनसे डेफिनेटली पूछिए, चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं इस सेशन को हैंड ओवर कर रहा हूँ दीपक सर को। तो दीपक सर प्लीज ज्वाइन दिस सेशन, स्टार्ट नाउ। ऑडिबल। हाँ, आप स्टार्ट कर लीजिए। मैं अभी आपको स्क्रीन अभी आपने शेयर किया है बट अब आ गया, स्क्रीन आ गई है आपके हमारे पास में। ठीक है ना। और आपको होस्ट बना दिया है, आप कैन यू कंटिन्यू नाउ। अभी स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर टुडे टॉपिक। यस्टरडे आप लोगों ने स्प्लाइसिंग एंड आज टुडे अवर टॉपिक जो है स्प्लाइसिंग का रहेगा। यस्टरडे आपका जो टॉपिक था वो ऑप्टिकल फाइबर ओवरव्यू का था। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक स्प्लाइसिंग। तो व्हाट इज स्प्लाइसिंग, व्हाट इज द नीड ऑफ splicing, how it is done with the help of video and some explanation we will see. So we will start little bit about some basic, then after we slowly move to splicing. So splicing optical fiber cable, we will start. Why splicing is needed? So there are several reasons for splicing a fiber cable. One of the reason, one or two or three reason, this may be one. Number one, to join two fiber due to drum length. आप सारे जानते हैं कि ड्रम लेंथ जो फाइबर का ड्रम है जिस पर फाइबर रहती है, दैट इज ड्रम, एंड इट द लेंथ ऑफ दिस ड्रम इज फिक्स्ड. इट इज लमसम 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर. So what about if we have to lay more than 2 or 4 kilometer cable? So there may be some joint. Suppose we have to lay 50 kilometer optical fiber. So there may be 25 drum used. So we have to make 25 splice. Splice means jointing, to join two fiber. But fiber is made of few silica glass. That is glass. That is not a metal that we can twist. So we can splice, we can join these fiber with the help of some splicing techniques. That is in the form of some hardware that is called splicing machine. Okay. So with the help of splicing machine, some hardware, we have to make some joint that is called splicing, because our fiber is made of glass, that is few silica glass. So with the help of this machine, specialized machine, we have to make some joint that is called splicing. So what is the reason for making a splice or joint? There are several reasons. You have seen in the screen. To join two fiber due to drum length. Suppose we have to make 50 kilometer drum length. So by using 25 drum at interval of every 2 kilometer or 4 kilometer, we have to make joint. Second, to extended cable run. Suppose there is a 25 or 30 kilometer already laid optical fiber cable, and we have to move more than this. So what is the remedy? The remedy is we have to make 2 kilometer, 4 kilometer jointing. At every 2 kilometer or 4 kilometer, we have to make joint. So basically, जो ड्रम लेंथ है वो 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर का है, and if we have to move more than this length, then we need to splice. Suppose already हमारे पास 50, 30, 40 किलोमीटर का एक केबल ऑलरेडी लेड है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, एंड वी हैव टू मेक, हम उसको एक्सटेंड करना है हमें उसको. सो एट व्हाट पॉइंट वी हैव टू, व्हाट प्रोसीजर वी हैव टू मेक? सो प्रोसीजर इज दैट
सो प्रोसीजर क्या होगा, हमें उसको ड्रम लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा। ऑलरेडी जो 20 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर जो ऑलरेडी लेट फाइबर है उसको हमें एट एवरी 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर पर एक एक्सटेंड करना होगा विद द हेल्प ऑफ ड्रम। सपोज एक ऑलरेडी हमारे पास ज्वाइंटिंग है, विद द धीरे धीरे टाइम पास हो रहा है, आफ्टर इट मे बी द चांस दैट आफ्टर 6 months और 1 year उस ज्वाइंट पर सम लॉस हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करना होगा, हमें दोबारा उसको स्प्लाइस करना पड़ेगा। और टू अटैच ए प्री टर्मिनेटेड पिगटेल, पिगटेल मीन्स सब कनेक्टर टाइप्स। वी विल सी व्हाट इज पिगटेल, हाउ इट इज सीन। सो जो हमारा कनेक्टर्स होता है ऑप्टिकल फाइबर का, वो हमको ऑप्टिकल फाइबर से ज्वाइन करना होगा। So for that purpose, we have to make some splice that is called pigtail. Okay. So there are several main reasons, 1, 2, 3, 4, for which we have to make splice. Okay. What is patch cord and pigtail? Pigtail अभी हमने डिस्कस किया था, pigtail एक वर्ड आया था, and patch cord. So see this. This is connectors, optical fiber connectors. And this is फाइबर। सो ये कनेक्टर बोथ साइड में इस फाइबर के है, दैट इज कॉल्ड पैच कोड। अगर एक साइड में कनेक्टर्स है, एक साइड में ओपन है, दैट इज कॉल्ड पिगटेल। ये कहां पर यूज होगी ये भी देखेंगे, बट वेयर इट इज यूज्ड पिगटेल एंड पैच कोड एंड हाउ इट इज मेक। So patch cord means the optical fiber which have connector at both ends, and pigtail means which have connectors at one side and second side it is open. So there are two things, patch cord and pigtail. Patch cord means both side connectors and pigtail means one side connector, one side open. So connectors means there are 4 types of connectors. See this is connectors. ये देखा आपने, ये कनेक्टर अलग शेप में है, ये अलग शेप में है। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं और इसके कहां कहां यूज होंगे, वी विल सी। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स। ये सारे ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर्स हैं। 1 LC, सेकेंड SC, थर्ड वन FC एंड फोर्थ वन ST। व्हाट इज SC? Square connector, SC fiber types connectors. SC stands for square connector और subscriber connector. तो SC है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? Square connectors और subscriber connectors. It has widely applied in single mode optical fiber. आपने कल फाइबर के टाइप भी पढ़े होंगे, सिंगल मोड, मल्टी मोड। So it has widely applied in single mode optical fiber cable. SC types of connectors. Second one connectors, LC. See the diagram. LC. This one is SC. This one is LC. So LC means lucent types of connector. Lucent. It is widely used in FTTH. FTTH जो है एक नई तरह की टेक्नोलॉजी है जिसे आप जियो फाइबर या BSNL भारत फाइबर बोलते हैं। जो आपके घर में फाइबर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? FTTH, फाइबर टू द होम। सीधे घर में आपके ऑप्टिकल फाइबर चला गया। सो ये जो लूसेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टर है, ये हमारा LC मीन्स लूसेंट टाइप्स कनेक्टर्स। इट इज वाइडली यूज इन FTTH। तो ये FTTH जो सर्विस है हमारी, उसमें वाइडली यूज होता है। थर्ड वन कनेक्टर्स ये है FC। FC स्टैंड फॉर फेरूल कनेक्टर्स। फेरूल, इट इज अ राउंड शेप थ्रेड फाइबर ऑप्टिकल कनेक्टर्स। FC हमारा मेटल पॉइंट रखता है, लेकिन बाकी स्क्वायर कनेक्टर और लूसेंट कनेक्टर ये हमारा मेटल पॉइंट नहीं है। FC connector is applied for single mode optical fiber. It is also used in single mode optical fiber. FC is becoming less common and mostly replaced by square connector and lucent connector because of its vibration loosening and insertion loss.
क्योंकि फेरुल कनेक्टर हमारा मेटल पार्ट का होता है, इसलिए हम इसको मोस्टली रिप्लेस किससे कर दिया हमने, स्क्वायर कनेक्टर एंड एलसी। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारा मेटल वाला पार्ट नहीं होता। लास्ट वन कनेक्टर कौन सा है, एसटी। ST is straight, refers to straight tip connector. The ST connector was developed by American Telegraph and Telephone (AT&T) shortly after the arrival of Ferrule connectors. So ये तो हमारे 4 टाइप्स के कनेक्टर्स हैं, इनका अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, लेकिन अभी कौन सा वाइडली यूज होता है, लूस एंड कनेक्टर, जो FTTS में यूज होता है करंटली, वाइडली वो यूज होता है। ओके, देखिए अब आपने पिकटेल और पैच कोड भी देखा, तो हमारा पिकटेल और पैच कोड कहाँ यूज होता है। देखिए 2 टाइप्स की हमारी केबल होती है, एक आउटडोर केबल जो हमारा सिटी से सिटी जोड़ती है। सपोज दिल्ली टू मुंबई हमारा जुड़ना है ऑप्टिकल फाइबर से, दैट इज कॉल्ड आउटडोर केबल। विद इन बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के अंदर जो केबल आती है, दैट इज कॉल्ड इंडोर केबल। सो ये देखो आप, ये जो ब्लैक कलर की केबल आ रखी है, दैट इज इंडोर केबल, ये सब अदर सिटी से आ रखी है। ये हमारा बॉक्स क्या बोलते हैं इसको, FDMS, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारा बॉक्स है, और ये हमारी जो केबल है, ये है हमारी इंडोर केबल। ये सिंगल फाइबर की केबल होती है, और आउटडोर केबल जो है मल्टी फाइबर की। सपोज आउटडोर केबल जो है हमारा 12 फाइबर की केबल हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 अप टू 12, ये हमारी 12 फाइबर जो है इंडिविजुअली फाइबर से कनेक्ट होंगे। तो ये यहाँ तो हमारे कनेक्ट हो जाएंगे स्प्लाइसिंग, हम ज्वाइंटिंग कर देंगे स्प्लाइसिंग से, और अदर टाइप्स में यहाँ जो बाहर निकलेगा ये होगा हमारा कनेक्टर। तो ये क्या होगा, पिकटेल, जो कि एक साइड इसकी ओपन है और एक साइड में इसका कनेक्टर यहाँ यूज है। देखिए यार दूसरा डायग्राम, ये कनेक्टर है फेरुल कनेक्टर, और ये ज्वाइंट होकर ये ओपन यहाँ हमने स्प्लाइस कर दिया इस आउटडोर केबल की एक एक सिंगल फाइबर से। तो ये हमारा पिकटेल है, ये वाला सिंगल फाइबर। यहाँ हमारा पैच कोड लग जाएगा, यहाँ कनेक्टर आ जाएगा दूसरा, और जो यहाँ से निकलेगा आउटडोर में दूसरी स्टेशन के लिए या दूसरी स्पेस के लिए, वो भी हमारा कनेक्टर्स होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पैच कोड। सो हमारे पिकटेल और पैच कोड का हमारा कहाँ यूज है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी हम एक वीडियो देखेंगे कनेक्टर्स के लिए। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट? नो सर। तो अभी हम जो है एक वीडियो देखेंगे कनेक्टर्स की, और बीच बीच में मैं उसको एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। ओके, and provide a test box. I'm going to go over connector types here, starting with the 1.25 millimeter ferrules all the way to LC connector. See this is LC connector. LC means loose end connectors. देखिए, this one is square connector, SC connector. This one is LC connector. So LC shape is very small compared to square connector. कोई मेटल पार्ट नहीं होता दोनों में,
लेकिन बट एससी कनेक्टर इसकी विड्थ ज्यादा होती है कंपेयर टू एलसी कनेक्टर, बट नाउअडेज एलसी कनेक्टर इज मोस्टली वाइडली यूज्ड. To make looks something like this. Each adapter is unique to the inside. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कनेक्ट कपलर, जिसमें इन्होंने फिट किया है, दैट इज कॉल्ड कपलर. There are two types of connector, one for trans, one for receive. Sir, it's not audible, sir. मैं बीच में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. This is ferrule connector called FC. This have round shape and have metal point. This one is metal point. It's not properly working. Sir, video is not properly working. अभी मैंने स्टॉप कर रखा है इसको, ठीक है मैम, अभी मैंने स्टॉप कर रखा है इस वीडियो को, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसके बारे में, राइट. दिस वन इज फेरुल कनेक्टर. ये राउंड शेप में है और मेटल पार्ट रखता है. This one is a coupler, 0 dB coupler. 0 dB coupler means there is no loss. To connect to ferrule connector, this one is needed, 0 dB coupler. This one is a coupler. Screwing the barrel. This one is a coupler. अभी स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. अभी हमने कनेक्टर के बारे में देखा, फेरुल कनेक्टर, लूसेंट कनेक्टर, स्क्वायर कनेक्टर और एसटी कनेक्टर्स, उनका हमने एक वीडियो देखी छोटी सी. अब हम आते हैं स्प्लाइसिंग पर. Splicing machine. Splicing machine, I have already explained that some hardware types of things. Mechanical device for jointing two pieces of optical fiber. Because our optical fiber is made of glass and we can't join the glass with our hands and other things. So we
need to some specialized types of things. That is splicing machine. It is also called a splicer. Splice means to joining two pieces of optical fiber. Splice, joint made by overlapping two ends and joining them. That is called a splice. And splicing, the process of the permanent connection of two pieces of optical fiber. So basically यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम मेज मशीन, वो ऑप्टिकल फाइबर जो ग्लास है हमारा, वो उसको हम इसके मेल्टिंग पॉइंट तक टेम्परेचर जनरेट कर रहे हैं ग्लास के. जब वो टेम्परेचर जनरेट हो जाता है तो वो मेल्ट वहीं पर होकर उसको हम अलाइनिंग कर लेते हैं. अलाइनिंग मीन्स कोर से कोर और क्लैडिंग से क्लैडिंग एक दूसरे के बिल्कुल इन फ्रंट हो. दैट इज अलाइनिंग. अदरवाइज हमारी जो है स्प्लाइसिंग जो है प्रॉपर नहीं होगी, लॉस हो जाएंगे बहुत ज्यादा. ठीक है. तो ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसर मीन्स मशीन. So optical fiber splicer is responsible for ensuring efficient splicing of the optical fiber cable and supports in optical fiber installation. Should have the knowledge of standard splicing process for both underground and overhead cable. देखिए underground and overhead cable, what does it mean? हमारी जहां पर सॉफ्ट सॉइल है वहां पर हम क्या करते हैं, जमीन के अंदर ऑप्टिकल फाइबर को ले करते हैं. दैट इज इन द 1.6 मीटर अंडर द सरफेस. 1.6 मीटर हम जमीन के अंदर उसको ले करते हैं केबल. ये हमारा स्टैंडर्ड है. लेकिन जहां पर हमारे रोकी है, रोकी मीन्स पत्थर है, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, क्या हम उसको डिग कर सकते हैं, खुदाई कर सकते हैं उसकी? नहीं. तो वहां पर क्या है हमारे पास, दिस वन ओवरहेड केबल. वहां पर क्या है, हम ऊपर ही ऊपर ले जाते हैं, जो हमारे पिलर हैं उनके थ्रू, खंभों के थ्रू हम ऑप्टिकल फाइबर को ले जाते हैं. सो अंडरग्राउंड केबल एज वेल एज ओवरहेड केबल. सो ऑप्टिकल फाइबर केबल आपने देखा था यस्टरडे कि इसमें क्या क्या होता है. देखिए कोर, इनर पार्ट क्या होता है इसका, कोर, ये माइक्रोमीटर में होती है इसकी डायमेंशन. आउटर पार्ट क्या होता है, क्लैडिंग. दोनों एक ही मटेरियल का बना होता है. डिफरेंस क्या होता है इसमें, कोई बताएगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. यस, वेरी गुड. कितना होता है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कोर का होगा वो 1.46 होता है, इसका 1.47. क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमारा क्या है, दोनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होना जरूरी है. देन आफ्टर थर्ड थिंग्स क्या है, प्लास्टिक बफर. एक कोटिंग होती है पतली सी प्लास्टिक बफर. और लास्ट वन क्या है, जो आउटर जैकेट है जो आप देखते हो येलो ब्लैक कलर की, दैट इज आउटर जैकेट. तो जो भी हमें स्प्लाइसिंग करनी होगी उसको हमें क्या करना होगा, किसकी स्प्लाइसिंग करनी होगी, इस पूरी केबल की. हमें क्या जोड़ना है, बेसिकली हमें ग्लास जोड़ना है, ये वाला जिसमें से सिग्नल पास करता है. ये हमारे अनवांटेड थिंग्स है क्योंकि ये हमें केबल को प्रोटेक्शन देनी है. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आउटर जैकेट एज वेल एज प्लास्टिक बफर और इनर जैकेट. तो हमें पहले ये वाली आउटर लेयर रिमूव करनी होगी, उसके बाद इनर लेयर रिमूव करनी होगी, प्लास्टिक बफर. देन आफ्टर वी हैव टू मेक जॉइंट विद द हेल्प ऑफ दिस क्लैडिंग और कोर. बोथ क्लैडिंग एंड कोर आर मेड बाय ग्लास. सो हमें ग्लास को ही हमें ज्वाइंट करना है. प्लास्टिक को ज्वाइंट हम नहीं करते क्योंकि देयर इज नो सिग्नल इन प्लास्टिक, इट इज जस्ट फॉर सेफिंग. सो आउटर जैकेट, इनर जैकेट को हम रिमूव करते हैं और ग्लास क्लैडिंग और जो है ग्लास कोर को हम विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइसिंग मशीन ज्वाइंट करते हैं. अब मान लीजिए एक कोर है एक साइड की केबल और दूसरी साइड हम जो जोड़ रहे हैं वहां क्लैडिंग जुड़ जाए, तो क्या हमारा सिग्नल पास करेगा? नहीं. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अलाइनमेंट. अलाइनमेंट मींस प्रॉपर अलाइनमेंट. बोथ कोर टू कोर एंड क्लैडिंग आर इन द पोजीशन, आर सच इन द पोजीशन that they have to make in front of each other. The construction of an optical fiber cable consists of an inner glass core surrounded by a glass cladding which has a lower refractive index. Okay. Digital signal are transmitted in the form of light signal which is trapped in the glass core. ये जो लाइट इसमें ट्रेवल करती है ऑप्टिकल फाइबर केबल में, ये कहां से आती है? Anybody of you? कहां से आती है? So from the source, जो electrical
कन्वर्ट लेकिन सोर्स तो हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल दे रहा है, डिजिटल दे रहा है। तो फोटो लेजर अगर हम यूज करें तो उससे कन्वर्ट कर सकते हैं फोटो डायोड। लेजर क्या करता है, लाइट जो हमारे रिसीवर पर होता है वो फोटो डायोड, वो जस्ट रेसिप्रोकल काम करता है ट्रांसमीटर के। मींस हमारा जो ऑप्टिकल सिग्नल आया उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल में, एट रिसीवर। तो अब मेरे पास मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं वन वे कम्युनिकेशन होगा, मेरे रेफरेंस में आप भी बोलोगे। इट मींस क्या हो गया, दोनों साइड में डुप्लेक्स मोड में सिग्नल ट्रांसमिट होगा, डुप्लेक्सन लगा होगा। मींस लेजर मेरे एंड पे भी होगा, आपके एंड पर भी होगा ट्रांसमीटर के लिए। लेकिन एक समय में आप ट्रांसमिट करोगे तो मैं रिसीव करूंगा, तो मेरे एंड पे क्या होगा, फोटो डायोड भी होगा। जब मैं बोलूंगा तो आप भी रिसीव करोगे, तो आपके एंड पे भी फोटो डायोड होगा। सो ट्रांसमीटर एज वेल एज रिसीवर, ये दोनों हमारे दोनों साइड में होंगे, जिसको कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों, बोथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इज कॉल्ड ट्रांस रिसीवर। मींस लेजर प्लस एवलांचे फोटो डायोड इज इन द combine and that is called transceiver. Okay, any doubt? किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो हमारे पास ट्रांसमीटर रिसीवर भी हो गया, आप लोगों के पास भी हो गया। तो ये हमारी जो लाइट जाएगी सिग्नल में, केवल कोर और क्लैडिंग में ही ट्रांसमिट होगी। और केवल लाइट कहाँ जाती है, ट्रांसमिट होगा केवल कोर में, क्लैडिंग में कोई पार्ट नहीं जाएगा, क्योंकि क्लैडिंग से हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो लाइट कंसंट्रेट रहती है वो किस में रहती है, कोर में। तो देखिए मल्टी मोड फाइबर, सिंगल मोड फाइबर। सिंगल मोड में एक ही मोड होता है प्रोपोगेट, मल्टी मोड में कई सारे एंगल्स हमने किया 1 2 3, तो एट ए टाइम इसमें कितने सिग्नल जा रहे हैं, 3 अलग अलग वेवलेंथ के। सिंगल में 1 2 3 4 वही है, कोर क्लैडिंग बफर जैकेट, जो मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए दो तरह की स्प्लाइसिंग होती है। पुराने टाइम में एक स्प्लाइसिंग और होती थी, मैकेनिकल स्प्लाइसिंग। अभी करंटली जो होती है 100%, आई एम सेइंग 100%, कौन सी होती है, स्प्लाइसिंग मशीन के थ्रू, दैट इज कॉल्ड आर्क फ्यूजन स्प्लाइसिंग। उस स्प्लाइसिंग को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्क फ्यूजन स्प्लाइसिंग। सो जो हमारी स्प्लाइसिंग मशीन स्प्लाइस करती है वो किस मेथड से करती है, आर्क फ्यूजन स्प्लाइसिंग। इसका मीन्स क्या हुआ कि एक टेम्परेचर, एक आर्क जनरेट होगी एट ए सडन, जो मशीन जनरेट करेगी, और वो जो टेम्परेचर जनरेट करेगी, आर्क जनरेट करेगी, उसका टेम्परेचर जो होगा दैट इज इक्वल टू आवर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्लास। कौन सा ग्लास, फ्यूज सिलिका ग्लास। सो ये ऑटोमेटिकली होता है प्रोसेस, और हम सारी प्रोसेस को स्क्रीन पर देखते रहते हैं। किसकी स्क्रीन पर, स्प्लाइसिंग मशीन की। सो 100% अभी नाउ डेज फ्यूजन स्प्लाइसिंग हो गई। उससे पहले हमारी क्या होती थी, मैकेनिकल स्प्लाइसिंग। उसमें प्रॉब्लम थी किस चीज की, देखो बताएंगे, अभी बताएंगे। स्प्लाइसिंग मशीन इस तरह की होती है, आप लोगों ने किसी ने देखी है इससे पहले? नो सर। तो ये हमारी स्प्लाइसिंग मशीन है। ये मशीन देखिए, ये जो इन फ्रंट है ये वाली, मैं इसकी वीडियो भी आपको बताऊंगा, इसकी प्रोसेस भी अभी बताएंगे क्या क्या होती है। ये हमारी देखो एक्स ओब्लिक वाई है। इसका मीन्स क्या है, एक्स एक्सिस आप सारे समझते हैं, और वाई एक्सिस वर्टिकल और एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। तो एक्स एक्सिस में अलाइनमेंट होगा और वाई एक्सिस में होगा। मीन्स अगर दूर दूर हमारी ऑप्टिकल फाइबर होंगी जो जुड़नी है, तो क्या वो जुड़ जाएंगी, दैट इज एक्स एक्सिस। मीन्स अगर दो ऑप्टिकल फाइबर केबल हमारे ऊपर नीचे हो गई, इट मीन्स क्या हुआ, उसकी कोर क्लैडिंग दोनों ही डिस्टर्ब हो गई, एक की कोर दूसरे की क्लैडिंग के सामने आ जाएगा।
तो जब तक हमारी एक्स और वाई एक्सिस में अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होगी, वी कांट मेक ए प्रॉपर स्प्लाइसिंग। तो ये सारा हमारा ये मशीन ऑटोमेटिक करती है, और ये सारा प्रोसेस हम कहाँ देखते हैं, इस स्क्रीन पर। ये हमारा बॉक्स है, इसको हम ओपन करते हैं। अब धीरे धीरे आगे देखेंगे कैसे ओपन होता है। अभी आपने स्प्लाइसिंग मशीन देखी, और ये फील्ड में हम कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें बैटरी ऑपरेटेड होती है, इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा होता है, 7 से 8 घंटे 10 घंटे होता है। फिर डेली हम आए, शाम को इसको चार्जिंग पर लगा दिया, अगले दिन को फिर ले गए। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। अब प्रोसेस क्या है स्प्लाइसिंग की? देखो, सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करना है कि हमारा स्प्लाइस कहाँ करनी है। मान लीजिए प्रॉपर हम नई केबल डाल रहे हैं, तो हमें पता लग गया कि यू हैव टू मूव एवरी 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, क्योंकि हमारी ड्रम की लेंथ ही इतनी है। लेकिन अभी हमने कर लिया, पूरे प्रोसेस कर लिया, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर केबल डाल दी। उसके बाद हम क्या करें? मान लीजिए 1 ईयर आफ्टर 2 ईयर केबल बीच में कट जाती है, एट एनी रीजन। कोई और प्राइवेट कंपनी का केबल डाल रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इरिगेशन डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, एट एनी हाउ। तो हमें कैसे पता लगेगा कि केबल हमारी कहाँ कटी? कोई बता पाएगा? मेरा क्वेश्चन समझ गए आप लोग? आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हमने शुरू में तो हमने केबल डाल दी, तो हमें पता है कि हर एवरी 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर जो कि हमारी ड्रम की लेंथ है, वहां पर हमें स्प्लाइस करना है। लेकिन जब हमने पूरा जो हमारा रूट है, आइदर 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, व्हाटएवर द केस में भी, देन आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स बाद केबल कट जाती है। तो हाउ वी कैन जज बेटर द पोजिशन, द पर्टिकुलर पोजिशन दिस हैव द कट? OTDR से? Yes. So with the help of OTDR, OTDR means optical time domain reflectometer. मैं उसकी एक वीडियो भी अभी आपको दिखाऊंगा 2 मिनट्स की। OTDR कैसा फंक्शन करता है? तो OTDR एक हैंड होल्ड हार्डवेयर इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक स्क्रीन होती है। उस स्क्रीन के थ्रू हम फाइंड आउट कर लेते हैं लमसम पोजीशन नियर बाई कि ये 20 किलोमीटर पर इसका ज्वाइंट, इसका कट जा रहा है। तो हम वहां 20 किलोमीटर पर जाने के बाद उसको हम फाइंड कर लेते हैं कि ये हमारी केबल कट गई। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ स्प्लाइसिंग पोजीशन विद द हेल्प ऑफ OTDR, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। स्ट्रिपिंग ऑफ द केबल जैकेट। स्ट्रिपिंग ऑफ, मैंने आपको बताया था कि केबल हमारी किस तरह की होती है। केबल हमारी इस तरह की होती है, उसमें आउटर जैकेट, इनर जैकेट सब होते हैं। क्या वो हमारे ज्वाइंटिंग के लिए हेल्पफुल है? हमें ज्वाइंट किसका करना है? केवल कोर और क्लैडिंग का, जो कि ग्लास के बने होते हैं। वो तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए केबल की। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो एक्स्ट्रा आउटर जैकेट, प्लास्टिक बफर टाइप्स ऑफ थिंग्स थी, उसको हमें क्या करना है, स्ट्रिपिंग ऑफ, रिमूव करना है। ठीक है, यस सर। हमारे पास क्या बचा? हमने पहले पोजीशन फाइंड आउट कर ली विद द हेल्प ऑफ OTDR। पोजीशन पे पहुंच गए, स्प्लाइसिंग मशीन हमारे हाथ में है, तो हमें क्या करना है, उसका फिजिकल बनाना पड़ेगा। मींस उसको जो ज्वाइंटिंग है, ऐसा नहीं है मशीन को तुमने रख दिया उस केबल के ऊपर, उसने अपने आप ही ग्लास को जोड़ दिया, नहीं, उसको आप ग्लास पर बना कर दोगे। वेदर यू हैव टू मेक ज्वाइंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लास, सो यू हैव टू रिमूव ऑन द एक्स्ट्रा थिंग्स व्हिच इज आउटर जैकेट एज वेल एज प्लास्टिक बफर। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हमने आउटर जैकेट, प्लास्टिक बफर टाइप्स ऑफ थिंग्स हटा दी। फिर क्या हुआ, प्रिपरेशन ऑफ मैकेनिकल जॉइंट क्लोजर। जब आप इसमें ज्वाइंट कर लोगे, तो जो आपने एक्स्ट्रा थिंग्स हटाई थी, कौन सी, आउटर जैकेट, इनर जैकेट, प्लास्टिक बफर, तो एक बार हटाने के बाद आप अपना उसमें डेवलप तो कर नहीं सकते। अगर उसमें नहीं कर पाओगे तो वो केबल हमारी कमजोर हो जाएगी। ज्वाइंट तो हो जाएगा
लेकिन कभी भी टूट सकती है, ब्रिटल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मैकेनिकल ज्वाइंट क्लोजर, इसका मैं फोटो आपको दिखाऊंगा, वो उसी के अंदर हम उसको फिट कर केबल के ज्वाइंट बनाते हैं और उसको हम फिर क्या करते हैं, कवर कर देते हैं, जिससे वो हमारी सेफ रहे फिजिकली। ओके, स्प्लाइसिंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब हम ज्वाइंट, हमने मैकेनिकल ज्वाइंट क्लोजर भी लगा दिया, फिर हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइसिंग मशीन ऑप्टिकल फाइबर केबल को हम जोड़ देते हैं, मशीन जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के बाद मशीन का जो मैंने आपको डिस्प्ले दिखाया था, उसमें हमारा ये भी आ जाता है कितना लॉस आया आफ्टर मेकिंग दिस स्प्लाइस, भाट टाइप्स ऑफ लॉस, कितना लॉस इस ज्वाइंट क्लोजर ने दिया आपको, वो भी हमारा क्या आता है, डीबी में लिख के आ जाता है, इतना डीबी लॉस। ठीक है, तो ये हमारा ये भी थिंग्स आ गई, स्प्लाइसिंग लॉस मेजरमेंट। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप सब थिंग्स होंगी, ऐसा नहीं कोई भी हमने स्टेप ऊपर कर दिया, ऐसा नहीं है हमने बगैर केबल की पोजीशन को फाइंड आउट किया, हम केबल निकल गए फील्ड में कि केबल जोड़नी है। अब जो एक्स्ट्रा केबल है आपके पास, दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो केबल काफी गहराई में चली गई, तो उसमें क्या किया आपने, आप अपने से एक्स्ट्रा केबल ले गए अपने साथ और उसमें आपने लेफ्ट और राइट साइड में वो केबल आपने ज्वाइंट कर दी, क्योंकि वो ना तो आप राइट साइड से खींच सकते थे ना लेफ्ट साइड, वो अंदर है जमीन के। जो आपके घरों की केबल होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, वो खींच सकते हो, तो ज्वाइंट बन जाता है इजीली। लेकिन ये जमीन के अंदर बंद है, तो राइट और लेफ्ट से आप खींच ही नहीं सकते, तो आपको यू हैव टू मेक योर ओन एक्स्ट्रा केबल। मान लीजिए 12 फाइबर की केबल पड़ी हुई है, तो आपको क्या है, जो आप जहां जाओगे गाड़ी विद द हेल्प ऑफ सम व्हीकल, उसमें आप वो एक्स्ट्रा केबल ले जाओ। सो अगर कोई केबल हमारी बचती है सरप्लस, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको सर्कुलर फॉर्म में रखकर उसको वही जमीन के अंदर रख देंगे, लेकिन वो आपको जिग जैग नहीं रखनी, एक राउंड शेप में रखनी है, जिससे हमारा लॉस बहुत कम रहे। अब उसके बाद हम क्लोजिंग ऑफ केबल स्प्लाइसिंग, सबको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी जो हमारी, अब क्या स्टेप है, अब आपने बीच में एक पॉइंट आया था, हमने स्प्लाइस कर दिया। अब स्प्लाइस भी अपने आप में कैसे किया, आपने क्या किया, उसको सारी कोटिंग हटा दी, किसकी, ग्लास की, कोर और क्लैडिंग की। वो ग्लास की तो फॉर्म में है, नाम हमने कोर क्लैडिंग दे दिया। अब वो उसके आपने कितनी ही अच्छी रिमूव किया आपने प्लास्टिक पेपर, लेकिन कुछ ना कुछ उस पर लगा ही रहता है। अगर उसे ऐसे ही जोड़ दोगे तो हो सकता है जुड़े ही ना, वो ये बोल दे मशीन टू हैवी लॉस, टू डस्टी। तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वी हैव टू मेक क्लीन, हमें उसको क्लीन करना है। टिश्यू पेपर पे हमने एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले लिया, ये लिक्विड वो होता है जो आप मोबाइल की स्क्रीन को, जो मोबाइल शॉप पर आप जाते हो तो वो क्लीन करता है, दैट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आईपी। अब क्लीव द फाइबर, अभी जो फाइबर है, जो कोर क्लैडिंग है, वो ग्लास का है, उसे आप सीजर से, कैंची से नहीं काट सकते, क्योंकि वो मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में है, जो आपको दिखाई ही नहीं देगा कि ये जिग जैग कटा है या स्ट्रेट कटा है। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर कटर होता है, दैट इज कॉल्ड क्लीवर। और क्लीवर क्या होता है, डायमंड कटर होता है, उस पर आप फाइबर रखते हो और ऊपर से प्रेस करते हो अपना थंब, तो क्या होगा, वो क्लीव जो फाइबर है वो पूरे पूरे स्ट्रेटली 90 डिग्री पर कट हो जाएगा। 90 डिग्री पर कट होने के बाद कोर क्लैडिंग एक दूसरे के इन फ्रंट आ जाएगी। अगर जिगजैग कटेगा, देयर इज नो चांस टू ज्वाइन स्मूथली। ठीक है, अभी आपने प्लास्टिक कोटिंग भी हटा दी, जोड़ दिया, लेकिन कोटिंग आपने क्या किया, कोटिंग हटा दी तो आप आर्टिफिशियल कोटिंग भी एक लगाओगे, तो उसको बोलते हैं हम स्लीव। एक पतली सी ट्यूब होती है 2 या 3 इंच लंबी, जैसे आपने डिप वाली वो होती है ट्यूब, वो जस्ट आप 2 या 3 इंच लंबी काट दो और उसको किसी भी साइड में, आइदर लेफ्ट साइड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर और लेफ्ट साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड आपने एक में डाल दी। जब वो ज्वाइंट हो जाएगा, फिर उसके ऊपर लाए और उसी को वहां से मशीन के थ्रू उसको फिक्स कर दिया। उसमें एक मेटल का वायर होता है पतला सा, जिससे वो उसकी प्रोटेक्शन, जहां जहां आपने ग्लास कोर ग्लास क्लैडिंग रखी वहीं पर उसको इंसर्ट कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्लीव्स। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्या होता है। देखिए, स्ट्रिपिंग का मतलब है
एक्स्ट्रा जैकेट जो आपने एक्सटर्नल जैकेट, इनर जैकेट, और प्लास्टिक बफर, ये सारी सारी आपने काट दी, तो काटने को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग। तो देखिए ये हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ये टिश्यू पेपर है, इसको हम क्लीन कर रहे हैं डायग्राम। ठीक है, देखिए टिश्यू पेपर एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। देखिए मैं आपको कटर बोल रहा था, क्लीवर, इसकी शेप ये है। यहाँ आपने फाइबर रख दिया, जितना एक्स्ट्रा काटना आप यहाँ रख दिया, और इसको ऊपर से थंब से दबा दिया, प्रेस कर दिया। इसको इंसर्ट करने के बाद इसको प्रेस कर दिया, तो ये स्मूथली 90 डिग्री पर कट हो जाएगा। तो इसको हैंड हेल्ड क्लीवर, क्योंकि हमारे हैंड से हेल्ड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हैंड हेल्ड क्लीवर। तो इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? क्लीवर। ठीक है, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? No, sir. आपको सब चीजें क्लियर हो रही हैं? Yes, sir. अभी मैं डायग्राम वो एक वीडियो और दिखा दूंगा इसकी स्प्लाइसिंग की, तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो। तो क्लीवर भी आपने देख लिया। मैंने आपको बोला स्प्लाइसिंग कितने टाइप्स की होती है, मैकेनिकल और फ्यूजन। अभी मैकेनिकल स्प्लाइसिंग बिल्कुल नहीं होती, फ्यूजन होती है जो मशीन के थ्रू होती है। मैकेनिकल में क्या प्रॉब्लम थी ये मैंने आपको बता ही दिया। मैकेनिकल में देखो इस तरह का मैकेनिकल एक जॉइंटर था, हमने इसके अंदर एक फाइबर डाल दी, लेफ्ट साइड से राइट साइड से डाल दी, और इसको एक क्लैंपिंग से हमने कस दिया। इसमें क्या प्रॉब्लम थी? अलाइनमेंट प्रॉब्लम। अगर ये मान लीजिए तेजी से गिरता या कुछ पे प्रेशर पड़ता, तो हमारा जो कोर क्लैडिंग का जो अलाइनमेंट है वो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। तो हम क्यों ना इस तरह से ऐसा करें कि परमानेंट स्प्लाइसिंग हो जाए। तो वो हमारा विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइसिंग मशीन, और उसमें टाइम भी कम लगता है। ये हमारी फ्यूजन स्प्लाइसिंग देखो मशीन जो करती है। एक हमने आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट की मशीन के थ्रू दोनों साइड से, और ये फाइबर को मेल्ट किया और ये फिक्स हो गया। एडवांटेज क्या है? कंसिस्टेंट एंड इजीली कंट्रोल हीट विद एडिटिविटी। ठीक है, देखिए अब ये फाइबर का जो मशीन है स्प्लाइसिंग मशीन, इसके ऊपर साइड का डायग्राम है। ये हमारी जो रोड है ये इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट करती है। एक फाइबर इस साइड में रखा जाता है, एक साइड फाइबर इस साइड में रखा जाता है, और ये क्लैंपर है, इसको हमने इसको क्लैंप से टाइट कर दिया। ठीक है, ये देखिए और क्लोज व्यू ले लेते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट करती है ये वाली, और ये हमारा फाइबर है। देखो थोड़ा हमने इतना गैप में रख दिया। अब क्या होगा? इसमें अलाइनमेंट होगा, इस साइड का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में माइक्रोमीटर मिलीमीटर में होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा कोर क्लैडिंग का अलाइनमेंट होगा। अब देखो ये जो हमारी मशीन का स्क्रीन है, ये इनर वाला पार्ट क्या है? कोर, और ये क्लैडिंग। देखो क्लैडिंग से क्लैडिंग सामने है और कोर से कोर सामने है। अगर ये ऊपर चली जाती है, नीचे आ जाती है, तो क्या इट पॉसिबल टू ज्वाइन? नो। तो ये सारी प्रोसेस हम जो है मशीन पर एलसीडी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें जोड़ने के ज्वाइंट होने के बाद उसमें इस स्क्रीन पर लिखा हुआ जाएगा डीवी लॉस। ओके की बीप आएगी, जुड़ गया, और इसके बाद 0.01 डीवी, 0.02 डीवी, इस तरह से इसमें लिखा हुआ आ जाता है। अगर बहुत ही अच्छा ज्वाइंट रहता है तो 0 डीवी भी आता है। जैसे जैसे इसका टाइम बढ़ता रहता है, 1-2 साल, 4 साल, 5 साल, स्प्लाइसिंग होती रहती है ज्यादा, तो वो थोड़ा लॉस देने लगती है, 0.01, 0.02। तो हमारी जो प्रोटेक्शन है वो किस किस से करनी है? हमें मैकेनिकल डैमेज से करनी है, जिससे हमारी केबल डैमेज ना हो। मैकेनिकल डैमेज मीन्स केबल हमारी अंदर बंद है, ऊपर से हमने कोई प्रेस कर दिया, किसी लेबर ने कर दिया। केमिकल, मान लीजिए कोई आसपास में केमिकल फ्लो कर रहा है, या सोइल की कंडीशन ही ऐसी है, तो भी हमें उसकी केयर करनी है। कोई डिफरेंट एजेंसी है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी है, आर्मी है, नेवी है, ये कोई डिग कर रही है, उसको भी हमें देखना है। प्राइवेट कंपनी है, हम ही खुद केबल डाल रहे हैं, हो सकता है केबल डालते डालते हमसे ही ब्रेक हो जाए, कट जाए। तो ये सारी प्रोटेक्शन, ये सारी रीजन है कि हमें वी हैव टू मेक सम प्रोटेक्शन अबाउट दीज थिंग्स। ये देखिए स्लीव्स है, जो हम प्लास्टिक की, मैंने जो बोला 3-4 इंच लेंथ की हमारी प्लास्टिक की हम एक पाइप डालते हैं, वो ये है, और इसको हम मेल्ट कर देते हैं इस चैम्बर में। ये स्प्लाइसिंग मशीन का चैम्बर है, ज्वाइंट हो जाती है हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो हम उस ज्वाइंटिंग के ऊपर ये धीरे धीरे ले आते हैं इसको, हम स्लीव्स को, और वहीं रखने के बाद इस चैम्बर में रख देते हैं। चैम्बर में रखने के बाद ये ऑटोमेटिकली चैम्बर बंद हो जाता है। 10 सेकंड या 15 सेकंड बाद ये चैम्बर खुलता है ऑटोमेटिक, और ये इस पर मेल्ट होकर चिपक जाती है इस फाइबर पर।
ठीक है, तो ये क्या करती है, फिजिकल प्रोटेक्शन देती है इस ग्लास को। ये हमारा क्या है, ये हमने बोला था आपको मैकेनिकल जॉइंट क्लोजर। देखो ये केबल, हमने एक केबल इसमें डाली और एक केबल इसमें डाली, क्योंकि कटने के बाद उससे दो एंड हो गए। ये हमारा ट्रे है, फाइबर ट्रे। मान लीजिए 12 फाइबर की ट्रे है, तो 4 फाइबर एक ट्रे में रखी है और इसको इस ऊपर से ढक दिया। तो जो हमने आउटर जैकेट इनर जैकेट हमने प्रेस हटाया था, रिमूव किया था, उसकी जगह हमारा ये प्रोटेक्शन देता है। इसे क्या बोलते हैं, मैकेनिकल जॉइंट क्लोज। इसको हमने इस तरह से बंद कर दिया, जिससे आपस में एक दूसरे से टच ना हो, कुछ किसी तरह से आपस में फ्रिक्शन पैदा ना हो। ओके, अभी ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक वीडियो देखेंगे स्प्लाइसिंग की। if done correctly, should be just as strong. आप देख पा रहे हैं ये? fiber. The completed splice is usually Yes, sir. ठीक, Yes, sir. shrink plastic sleeve, which protects and strengthens the joint. How is this done? Here comes the technical part. First and most importantly, the fibers need to be stripped, cleaned, and स्ट्रिप का मतलब क्या है, कट। precisely. We'll cover this in more detail. in our आउटर जैकेट इनर demonstration जैकेट को हमने later. स्ट्रिप कर दिया। Fuse the ends of the two fibers together. देखो ये तीनों चीजें बता रहे हैं ये। Normally, इस डायग्राम को देखो, स्ट्रिप किया, आउटर जैकेट इनर जैकेट, प्लास्टिक बफर को हमने हटाया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिप। क्लीन, जो बचा हुआ हमारा ग्लास है, कोर क्लैडिंग, उसको हमने स्ट्रिप क्लीन किया विद द हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एंड देन क्या किया, क्लीव किया। क्लीव का मतलब 90 डिग्री पर हमने कट किया। उसके बाद हमारे कहीं जॉइंटिंग होती है। in the form of an electric arc. What is an electric arc? Well, according to encyclopedia.com, an electric arc is a device in which an electric current, that's a flow of electrons, is caused to flow between 2 points separated by a gas. Did you know that one example of an electric arc in nature is a lightning bolt? The heat can also be provided by a laser, gas flame, or tungsten filament through which current is passed. A fusion splicer ये हमारी क्या है, स्प्लाइसिंग मशीन है, स्प्लाइसर भी बोलते हैं इसको। is a piece of specialized equipment that can do all of this for you. Massive इसमें ये क्या है, ये स्क्रीन है, देखिए ये स्क्रीन दिखाई दे रही है यहाँ पर। second type of splice is a mechanical splice. मैकेनिकल जो स्प्लाइसिंग थी, जो हमने आपको बताई थी, ये हमारी मैकेनिकल स्प्लाइसिंग थी। इधर से हमने फाइबर इंसर्ट किया, इधर से किया और उसको क्लैम्प कर दिया, देखिए यहाँ बिल्कुल पास पास में। क्लीविंग क्या है, फाइबर को हमें 90 डिग्री पर कट करना है, तो ये हमारा क्या है, इसमें क्लीवर। लेकिन हमारे टूल्स हैं, ये स्प्लाइसिंग मशीन है, ये क्लीवर है, ये स्ट्रिपर है, दोनों ये सीजर है।
हमें स्टेप 1 यूज करना है। देखिए हमारा ये क्या है, ये स्लीव है, स्लीव जो हम प्लास्टिक की ट्यूब डालते हैं, ये हमारे इसके अंदर वायर है और ये हमारा फाइबर है, सिंगल फाइबर। देखिए ज्वाइंटिंग से पहले किसी भी एक एंड पर हम ये डालते हैं, अदरवाइज कहाँ से हम उसको इंसर्ट करेंगे। ये खुद कह रहे हैं कि वेरी स्टार्ट, एट वेरी स्टार्ट वी हैव टू मेक स्लीव। सेकंड स्टेप, अब देखिए ये, आप देखिए गौर से, ये हमारा जो आपको फाइबर दिखाई देती है, कभी आप देखेंगे तो इस तरह की, इसके अंदर क्या है ये, इसके अंदर क्या है ये, और इसके अंदर क्या है ये फाइबर है। तो हमें ज्वाइंट क्या करना है, ये करना है। देखिए इसमें प्लास्टिक बफर भी लगी हुई है, तो हमें ये आइसोप्रोपाइल और टिश्यू पेपर से ये रिमूव करनी है। ये हमारी प्लास्टिक बफर है ये वाली, ये इनर जैकेट है, ये आउटर जैकेट है। कोटिंग का मतलब है प्लास्टिक कोटिंग, प्लास्टिक बफर। और ये जो आउटर जैकेट, इनर जैकेट है, इसे बोलते हैं स्ट्रेंथ मेंबर। What type of fiber you want? Some example. देखिए इनका डायमीटर देख लीजिए, ये हमारा जो टूल है ये स्ट्रिपर है। स्ट्रिपर किस काम आता है, आउटर जैकेट इनर जैकेट को रिमूव करने के लिए। इसमें 3 ग्रुप्स हैं, देखो अलग अलग ग्रुप्स में, इसी में ये कट जाएगा, इसी में हमारा प्लास्टिक बफर कट जाएगा, अलग अलग इसमें स्लोट में रखने के बाद। As you can see, there are different sizes. You must remove the cut end from the machine manually using tweezers, busting tape. देखिए ये हमारा क्या है, क्लीवर है। देखिए ये हमारा स्क्रीन है स्प्लाइसिंग मशीन की। देखिए ये हमारा क्लैंप है, इनमें ओपन किया और इनमें फाइबर हमने रखा। ये हमारी क्या है, ये आयरन रोड है। देखिए
देखिए अभी क्या है, ये अलाइनिंग हो गई, ये क्लैडिंग है, ये कोड है, एक दूसरे के सामने हो गई। अभी देखिए देखो ज्वाइंट होने के बाद क्या हो गया, कितना लॉस शो किया इसने, 0.01 dB। and 30 dB loss, very much loss। देखिए अलाइनमेंट, द बेस्ट सॉल्यूशन 0 dB loss। तो आपने जो कैसे ज्वाइंट किया, डस्टी था फाइबर या कटिंग आपने क्लीप सही नहीं किया, ये किस फॉर्म में शो करता है, आपके लॉस की। देखिए ये डस्टी फाइबर कितना ज्यादा डस्ट है, कट कितना जिग जैग। देखिए ये भी स्ट्रेट नहीं है, 90 डिग्री पर कटा हुआ नहीं है, देखो ये बाहर निकला हुआ है, तो मिसमैचिंग हो जाएगी। देखिए कुछ प्रोसेस क्या है, कुछ आपको दिखा रखे, ये किस तरह से फाइबर कटा है, तो ये ज्वाइंट नहीं हो सकता, ये भी जिग जैग कटा हुआ है, ये भी इसमें से स्मूथ नहीं है, शार्पनेस नहीं है, यहाँ भी ये है। तो ये 4 टाइप्स की प्रॉब्लम है। देखिए देखिए अभी ज्वाइंट हो गया, ये अभी 2 पीस थे फाइबर के, सिंगल पीस हो गया। अभी क्या करेंगे, इसको स्लीव इसके ऊपर ले आएंगे। देखिए ये स्लीव हमने इसके ऊपर लगा दी और यहीं इसको हल्का सा मेल्ट करके इसको यहीं चिपका देंगे इस वाले चैम्बर से। ये वाला चैम्बर देखिए, ये खोला, इसको इसमें डाला, इसमें साइड में लोग होते हैं, जैसे इसमें डालेंगे लोग खुल जाएंगे, और इसको बंद कर, जैसे इसमें फिक्स किया अंदर, ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए अभी हमने इसको रिमूव किया, वो देखिए आप कितना मेल्ट होकर वहीं चिपक गया। ये मेल्ट होने के बाद देखो इस तरह से हो गया है। तो चीजें कुछ पता लगी आपको? यस सर। स्लाइड कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये पता लगी? जी सर। जी सर। अब देखो हम आते हैं थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं, वो ज्यादा नहीं है आपको। HDD मशीन, पहले क्या होता था, पहले लोगों के घर के आगे RCC वगैरह या पक्की सड़कें नहीं होती थी, तो ओपन ट्रेंचिंग कर ली, नाली एक तरह से ट्रेंचिंग के मतलब खुदाई, एक ओपन ट्रेंचिंग, और हमने उस 1.6 मीटर गहरी एक नाली खुदवा दी लेबर के थ्रू, और उसके अंदर हमने केबल डाल दी ऊपर से बंद।
बंद कर दी। लेकिन व्हाट अबाउट मेरे घर के आगे, आपके आगे कोई आरसीसी है और केबल हमें डालनी है, तो आपने देखा होगा सड़क के कोने में एक साइड में मशीन एक वो करती रहती है बोरिंग टाइप। उस मशीन को क्या बोलते हैं हम? एचडीडी मशीन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मशीन, एचडीडी मशीन। आपने ये मशीन देखी है कभी? Yes, sir. देखिए ये रोड के किनारे जो चलती है, इसका मतलब यह है कि वहां सॉफ्ट सॉइल नहीं है, वहां हार्ड रोकी है, रोकी एरिया। कोई अपने घर के आगे खुदाई नहीं करने देगा, ओपन ट्रेंचिंग। तो हमें क्या होगा, अल्टीमेटली हम नीचे नीचे बोरिंग करते हुए एक पाइप डाल देंगे प्लास्टिक का, दैट इज कॉल्ड पीएलबी पाइप। उस पाइप के अंदर हम ऑप्टिकल फाइबर बैक एंड से खींच लेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस है। तो देखो, अब वो इतनी सारी केबल जा रही हैं, इतनी सारी कंपनी हो गई इंडिया में, प्राइवेट कंपनी हो गई, गवर्नमेंट कंपनी हो गई, हमें कैसा पता लगा किसकी केबल कहाँ है? तो देखो इस तरह से एक रूटिंग होती है, ये आपने देखा होगा। तो जहां पर बीएसएनएल केबल है उसके ऊपर हम ये स्टोन लगा देते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल बीएसएनएल। किस रूट की केबल है? मान लीजिए जम्मू टू दिल्ली है, तो DLI डैश जम्मू, JMU। तो दिल्ली जम्मू रूट की ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है, किस कंपनी के? बीएसएनएल। तो इसको बोलते हैं हम रूट इंडिकेटर, रूट इंडिकेटर। और एवरी 200 मीटर पर ये लगा होता है। उसमें क्या होता है, एक रूट का नाम होता है दिल्ली टू जम्मू, और नंबर होता है 1 2 3 4। एक ज्वाइंट इंडिकेटर होता है। ज्वाइंट इंडिकेटर का मतलब ये है कि एवरी 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर पर एक ज्वाइंट होता है, तो हर ज्वाइंट पर हम एक इंडिकेटर लगा देते हैं। ठीक है। इसके बाद मान लीजिए कोई टी पॉइंट आया, हमें केबल को डाइवर्ट करना है, 50% फाइबर राइट साइड में डाइवर्ट करने और 50% फाइबर लेफ्ट साइड में डाइवर्ट करने, तो उसको बोलते हैं हम रूट डाइवर्जन इंडिकेटर। ठीक है। तो 3 टाइप्स के इंडिकेटर हो गए, रूट इंडिकेटर, ज्वाइंट इंडिकेटर, ब्रांच इंडिकेटर। ठीक है। अब ये लेइंग प्रोसेस है, देखो उस मशीन ने किया, और मशीन के बाद हमने क्या डाल दिया, ये पाइप, ये वाला पीएलबी, इसको बोलते हैं हम पीएलबी पाइप। ये 40 mm डाया है इसका, 40 mm इनर, और अंदर का जो है वो लुब्रिकेटेड है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम पीएलबी पाइप डाल देंगे, उसके बाद हम इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर। इस पीएलबी पाइप डालने का क्या फायदा है कि कोई अगर खुदाई करता है तो हमारी केबल डायरेक्ट नहीं कटती, सबसे पहले कट इस पर लगेगा, तो कोई समझ जाएगा कि कहाँ कुछ है अंदर, तो वो थोड़ा उसको देखेगा। और मान लीजिए हमारे पास केबल भी नहीं है ऑप्टिकल फाइबर, और हमें इसको मशीन चलानी है, तो हम केवल ये डाल के छोड़ देते हैं। जब केबल आएगी 2 4 5 दिन, 1 वीक में हम डालते हैं। तो ये हमारा फायदा है। ये ड्रम है, देखो ऑप्टिकल फाइबर का ड्रम इस तरह से होता है, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जो मैं बात कर रहा हूँ। इस पीएलबी पाइप को ऐसे डाल देंगे, और इसके अंदर फिर बैक साइड से, इस एंड से दूसरे एंड से वो केबल खींच लेंगे। ठीक है। तो अभी कोई डाउट आ रहा है आपको, कुछ क्वेरी है तो मुझसे पूछ लीजिए आप। ये मैं जो आपको मैंने पढ़ाया है, इसे मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप पर। किसी को कोई डाउट आ रहा है? कोशिश मैंने ये की है एक लेमैन की तरह बताऊं आपको चीजें, जिससे क्लियर हो जाए। आपको कोई डाउट है? No, sir. नो सर, कोई डाउट नहीं। नो सर, ठीक है। चीजें समझ में आ गई जो आज पढ़ाई गई? यस सर। Yes, yes. चलिए बहुत अच्छा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं 5-10 मिनट में आपका, मैं के यादव जी को, के सर को एक व्हाट्सएप कर दूंगा ये वाली प्रेजेंटेशन, और मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा दूसरे वाले। ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। आपका बहुत बहुत थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड वेलकम। और अगर ये क्वेरी है तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं।